यूक्रेन में रूसी सेनाओं के हमले के बाद वहां स्टडी करने गए छात्रों के मां बाप सदमे में नजर आ रहे हैं। वहां फंसे इंजीनियरिंग के छात्र सुचेत सिंह की परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए दिन रात में उठ कर दरवाजे से बाहर झांककर अपने बेटे के सकुशल लौटने का इंतजार कर रहे हैं। सुचेत सिंह के पिता बेटे का वीडियो कॉल आने पर उससे बात करते करते उनकी बूढ़ी आंखें नम होने लगती हैं, लेकिन साथ बैठी उनकी पत्नी जसबीर कौर उन्हें बेटे के सुरक्षित भारत लौटने का भरोसा दिला रही हैं। अंबाला रहने वाले सुचेत सिंह के पिता हरजीत सिंह का कहना है कि उनका बेटा 2018 में यूक्रेन की इंटरनेशनल क्लासिकल यूनिवर्सिटी मिकोलाइव में इंजीनियरिंग करने गया था, लेकिन 3 साल बाद रूस ने यूक्रेन पर अभी हाल ही में जो हमला किया है उससे जहां की वो एयरपोर्ट डैमेज होने के बाद सभी भारतीय सुरक्षित जगह निकल गए हैं। उनका कहना है कि जब से उन्हें पता चला है तब से उनकी रातों की नींद उड़ गई है। वे भारत सरकार से अपने बेटे को सुरक्षित लाने की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम हरजीत सिंह है। बेटा यूक्रेन गया होया है। 2018 च गया सी। स्टडी करने वास्ते गया सी। उत्थे ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਸ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਹਦੀ 7 ਵਜੇ ਕੀਵ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਔਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 12:30 ਵਜੇ ਕੀਵ ਮੈਟਰੋ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲਵੀਵ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਲਵੀਵ। ਤੇ ਉਹ ਲਵੀਵ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਾਤੀ ਆਪਾਂ ਸੋਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਡੀਨ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂ ਮਿਕੋਲਾਈਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ 20,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਐਰੋਡਰਮ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀਵ 에ਅਰਪੋर्ट भी बंद हो चुका है। वहीं सुचेत सिंह की माता जसबीर कौर का कहना है कि उनके 2 बेटे हैं, जिनमें बड़ा बेटा भारत में नौकरी करता है और छोटा बेटा सुचेत सिंह यूक्रेन में इंजीनियरिंग करने 2018 में गया था, जिसने 1 साल लैंग्वेज कोर्स करने के बाद अब उसका आखिरी साल था कि अचानक रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने से हालत बिगड़ गई और उनके बेटे सहित बाकी 6 भारतीय युवक जान बचाने के लिए कैब और टैक्सी द्वारा पोलैंड की तरफ कूच कर रहे हैं। वे सभी बहुत डरे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे ने 27 फरवरी को भारत आना था, लेकिन अब युद्ध के हाल बनने से सभी भारतीय सुरक्षित जगह जाने को मजबूर हैं। उनकी सरकार से गुहार है कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित देश लाने का प्रबंध किया जाए। मेरे 2 बेटे हैं। एक ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵਾਲਾ ਯੂਕਰੇਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਥੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਸਿਆ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
यूक्रेन में भारत के कई छात्र फंसे हुए हैं, जिनको सुरक्षित भारत लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे हरियाणा के लोगों को वापस लाने के लिए हरियाणा सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसको लेकर अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में है। विधायक ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर एक नंबर भी जारी किया है, जिस पर यूक्रेन में फंसा कोई भी भारतीय व्यक्ति हरियाणा सरकार से संपर्क कर मदद ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर के लगभग 2000 बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, जिसमें अंबाला के भी 30 से 35 बच्चे शामिल हैं। मेरे कल ही सीएमओ में बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं। एक नंबर भी अपने स्तर पर हरियाणा सरकार ने जारी किया है और जो भी बच्चा वहाँ फंसा हुआ है उस नंबर पे संपर्क करके हेल्प के लिए मांग कर सकता है। हरियाणा सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मनोहर लाल जी इस विषय में एक मैं कहना चाहता हूं कि आंख इस विषय पे रखे हुए हैं और बहुत स्वयं बड़े चिंतित हैं और बड़ी चिंता करके हरियाणा के लगभग 2000 बच्चे हैं, अंबाला के 30 से 35 बच्चे हैं, सभी सकुशल घर वापस आएँ। इसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी लगातार केंद्र के संपर्क में हैं।